Bioratna. Dear students, our every Sunday session at Bioratna is a special one because it is based on concept building. Today we are going to discuss haploid and diploid, which seems easy but it is not, and based on that the whole mitosis, meiosis, that is your chapter cell structure and cell cycle. Then in plant kingdom you will find the life cycle of bryophytes and pteridophytes, haplodiplontic life cycle. So today we will first clear our concepts about haploid and diploid, and then we will relate it to mitosis and meiosis, as well as we will see the haplodiplontic life cycle of bryophytes and pteridophytes. Of course, we are not going to discuss the steps of the cell divisions or the steps in their life cycle, but you will find that when your concept is clear, how easily you can do that. Your seniors will tell you that 3 topics, 3 chapters they find very difficult: plant kingdom, cell division and cell cycle, all because of this basic concept being not clear. So let us focus first on what is haploid and diploid, then let us relate it to first to the mitosis and meiosis. So it is what is haploid and diploid. We can in simple way we can say that a haploid means a single set of chromosomes. So if haploid is a single set of chromosome, then diploid is 2 sets of chromosome. But first you should know what is this single set and why this set it varies in different species. For example, you take the case of human beings. In case of human beings, this n number is equal to 23, not 23 pairs. 23 pairs is the diploid number. Then come to cat. In case of cat, it is 19. The number n, that is haploid number, is 19. In case of rat, it is 21. This is the haploid number. One set of chromosome को बच्चे आप बहुत आसानी से समझ सकते हो एक एनालॉगस एग्जाम्पल लेते हुए. दिस एनालॉगस एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, you are now student of class 11th. You have taken bio, na? That means your subjects are physics, chemistry, bio, English and one optional subject. Fine. Now you have bought all these books NCERT, one set of NCERT you have taken. So this is a complete set. When you have a book for each subject, आप इस सेट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो. यहाँ से अगर आप एक भी केमिस्ट्री की बुक हटा देते हो, फिजिक्स की हटा देते हो या बायो की हटा देते हो, then it will be a big handicap जो नहीं होना चाहिए. तो this is the minimum set. हैप्लॉइड सेट इज द मिनिमम सेट जिसे हम छेड़ते नहीं हैं. उसे कम करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. नाउ कम टू then you decide, okay, I will have one set of refresher also. So then you buy physics, chemistry, bio, English और optional का one more book. So this is your set number 1 and this is your second set. ये हो गए आपके 2 सेट. सिमिलरली हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं एंड दीज क्रोमोसोम्स दे कैरी द जीन्स. वो जीन्स जो ये डिसाइड करेंगे, उसका फिनोटाइप, कैरेक्टर डिसाइड करेंगे, उसकी बॉडी की पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होने वाली है, दैट वो डिसाइड करेंगे. मीन्स दैट कंप्लीट इंफॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड. जैसे आपको 11th का पूरा पढ़ने के लिए इन 5 किताब की ज़रूरत हुई, उसी तरह से उस ऑर्गेनिज्म को उतने क्रोमोसोम्स की ज़रूरत हुई. 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसमें उसने अपनी सारी इंफॉर्मेशन
लिखी हुई है. सो दिस इज वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज द हैप्लॉइड नंबर. तो फिर वो दूसरा वाला क्यों खरीदता है? आपने जैसे एक रिफ्रेशर अलग से ले लिया. ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल लेते हुए देखिए, उसके पास दूसरा सेट आया, तो आया कहाँ से? वी आर सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. जब हम सेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो देर आर टू पेरेंट्स. दोनों पेरेंट के जो गमीट्स है, दिस इज स्पर्म एंड दिस इज एग, दोनों के पास एक सेट है. दिस वन सेट हैप्लॉइड इज डिनोटेड बाय द लेटर एन. सो ये दोनों एन जब मिल जाते हैं देन इट बिकम्स 2n. हो गए डिप्लॉयड. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं. अब सेट आप समझ गए, मीन्स उतने क्रोमोसोम्स हमें ज़रूरी है सो दैट ऑल द जीन्स कैन बी एकोमोडेट ऑन दैट. उतने ही बुक्स उसने रखी हुई है. हमारे सेल ने 23 बुक्स में अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है. और ये 2 सेट हो गए, 2 पेरेंट से 2 सेट आ गए उस बच्चे में. नाउ दिस इज द जाइगोट. जो सेल बना दोनों के जुड़ने से वो है जाइगोट. अब हम देखते हैं इसे माइटोसिस से रिलेट करते हैं. ठीक है, माइटोसिस से रिलेट करते हैं और ये देखते हैं कि दिस इज सिंगल सेल. एक सिंगल सेल है जिसके पास दिस इज 2n, मीन्स इट इज हैविंग 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. 23 पेयर्स कितने होते हैं बच्चों? 46. इट इज हैविंग 46 क्रोमोसोम्स ओनली. एंड दिस सिंगल सेल इट विल गो ऑन डिवाइडिंग. 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करते हुए वो ट्रिलियंस ऑफ सेल बनाएगा. ट्रिलियंस ऑफ सेल, आपके सर से लेके पैर तक जितने भी सेल है बच्चों, सारे के सारे सेल में वो 46 क्रोमोसोम ही देता है, उससे कम वो नहीं देता. हाउ दिस मैजिक इज पॉसिबल कि जिसके पास सिर्फ 46 ही क्रोमोसोम है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल को 46 क्रोमोसोम दे पाए. दिस इज माइटोसिस. और उसे समझने के लिए अगर हम बार बार माइटोसिस के डिफरेंट स्टेप्स पढ़ते हैं ना बच्चा, दैट मीन्स प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो भी नहीं समझ पाओगे. लेकिन एक सिंपल सी छोटी सी चीज़ याद रखोगे तो फिर वो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से why this mitosis is equational division and it can give the same number of chromosomes to its daughter cells. So let us see how by mitosis one parent cell is giving same number of chromosomes to the daughter cells. So suppose this is a cell which is diploid 2n. ठीक है, और इसका 2n नंबर हम ले लेते हैं. हमारे तो 23 पेयर्स है, इसके 2 पेयर्स ले लेते हैं. 2 पेयर्स ले लिए, दैट मीन्स एक पेयर हो गया. दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1. क्रोमोसोम नंबर एक फादर से है, पैटर्नल 1, और एक मदर से है, दैट इज मैटरनल 1. हो गया 1 पेयर. अच्छा, नाउ क्रोमोसोम नंबर 2, दिस is one from father and one from mother. So this is paternal and this is maternal. So there are 2 pairs of chromosomes. Only thing which you have to remember bacha is that before any cell decides to divide, the chromosome has only 1 strand. 2 स्ट्रैंड नहीं होते. आप क्रोमोसोम में देखते हो ना, क्रोमोसोम में ऐसे 2 स्ट्रैंड होते हैं. एवरी एंड ईच स्ट्रैंड वी कॉल एज क्रोमैटिड. यहाँ ऐसा नहीं होता. और हर क्रोमोसोम में बस एक ही स्ट्रैंड होता है. एंड वी गिव इट दैट दर्जा कि हाँ यही क्रोमोसोम है. हम इसे क्रोमैटिड नहीं कहते, इसे हम क्रोमोसोम ही कहते हैं. बट द क्रोमोसोम्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड. सो दिस इज 1 सेल. ठीक है, दिस इज अ सेल जिसके जो क्रोमोसोम्स है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है. जब उसे डिवाइड होना होता है, नाउ व्हेन इट इज अंडरगोइंग माइटोसिस, उस समय ये क्या करता है, व्हेन इट हैज डिसाइडेड कि ओके नाउ लेट मी डिवाइड,
उसके पहले तक सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा. नाउ इट अंडरगोज वन एस फेज. इन एस फेज ये क्रोमोसोम में डीएनए डुप्लीकेशन तो हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा. आई रिपीट, ये क्रोमोसोम जो है कितने दिख रहे हैं आपको? 4 दिख रहे हैं. 2 पेयर, 2 ही पेयर रहेंगे. जैसे दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 एंड दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2. दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ मदर, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2. रहेंगे इतने ही. लेकिन अब क्या होने वाला है, ये अपने साथ एक दूसरा स्ट्रैंड बना लेगा, ये भी अपने साथ एक दूसरा बना लेगा, ये भी अपना दूसरा स्ट्रैंड बना लेगा, ये भी दूसरा स्ट्रैंड बना लेगा. ठीक है बच्चों, ये जो 1 पैटर्नल एंड 1 मैटरनल क्रोमोसोम है, इन्हें हम क्या कहते हैं पता है आपको? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. दिस इज होमोलॉगस क्रोमोसोम. Homologous chromosome. So we have 23 pairs of homologous chromosomes. अब ये देख के ही अब आप समझ रहे हो, we have not discussed the states of mitosis, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, किसी डिटेल्स में हम नहीं गए. हमने बस सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को पकड़ा और अब आप इसे देख के मेरे बिना समझाए भी समझ सकते हो कि अब जब ये 2 सेल बनाएगा तो फिर ये चारों जो क्रोमोसोम्स है उसके जो डबल स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाएंगे. सो दिस कंडीशन विल बी रिस्टोर्ड. इस पेरेंट्स में भी सिंगल स्ट्रैंडेड 4 थे और उसके जो 2 डॉटर सेल्स होने वाले हैं, इन 2 डॉटर सेल्स में भी यही सेम कंडीशन रहेगी. दैट मीन्स ये हो गया एक सेल जहाँ पे दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 पैटर्नल एंड मैटरनल, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2 पैटर्नल एंड मैटरनल. ये हो गई एक सेल. दिस इज 1 डॉटर सेल, दिस इज 1 डॉटर सेल एंड दिस इज अनदर डॉटर सेल. ये एक और ये एक. ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन, दिस इज ऑल्सो एन. दिस इज क्रोमोसोम 1 का एक पेयर, दिस इज क्रोमोसोम 2 का एक पेयर. ये जो सेपरेट होते हैं, ये सेपरेट होने की स्टेप को एनाफेज कहते हैं. जिस प्रोसेस में ये सेपरेट होते हैं बच्चों, वो स्टेप है एनाफेज. उसमें ये सेपरेट हो गए. इसलिए माइटोसिस में अगर यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर उसका 2 पेयर था, तो यहाँ पर भी 2 पेयर है और यहाँ पर भी 2 पेयर है. क्यों? क्योंकि उसने यहाँ एस फेज में अपना डीएनए का डुप्लीकेशन कर लिया था, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ाया था, नहीं तो फिर क्रोमोसोम नंबर में गड़बड़ी आती ना. दिस इज हाउ इट इज डन इन माइटोसिस. तो आप कहोगे कि क्या मियोसिस जो है उसमें जो आधे हो जाते हैं, तो क्या मियोसिस में एस साइकिल, एस फेज, एस साइकिल इज रॉन्ग वर्ड फॉर एस. एक साइकिल का, सेल साइकिल का एक फेज है, एक स्टेप है एस फेज. एस फेज जिसमें डीएनए बनता है. तो क्या वो मियोसिस में नहीं है? है. उसके बाद फिर ये जो 4 सेल्स बनाता है उसमें कैसे नंबर हाफ हो जाते हैं. अगर 23 पेयर्स है पेरेंट सेल में, तो फिर ये गमीट्स में कैसे 23 बन जाता है, चले देखें. तो दिस वाज माइटोसिस. माइटोसिस में आपको इतना याद रखना है कि वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, बिफोर एनी सेल कमिट्स इटसेल्फ फॉर सेल डिवीजन, तो उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एवरी क्रोमोसोम इज सिंगल स्ट्रैंडेड. अब डिवाइड करके 2 सेल करने हैं, अपने हर स्ट्रैंड का एक कार्बन कॉपी उसी के साथ जोड़ लेता है और 2 सेल बनाते समय उन दोनों कार्बन कॉपी को अलग कर देता है. इस तरह से हर कितनी बार भी वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स भी बनाता है, उससे भी ज़्यादा बनाएगा. इट हैज़ नो प्रॉब्लम. इट गोज ऑन रिपीटिंग द सेम प्रोसेस एंड माइटोसिस इज दस एन इक्वेशनल डिवीजन. अब मियोसिस का क्या कैच ले बच्चों, चलो देखते हैं कैसे समझे मियोसिस को. Meiosis is a reductional division. Reductional divisions means what? वहाँ पे तो सेम टू सेम चल रहा था ना कि अगर सेल में 23 पेयर्स है
तो डॉटर सेल्स में भी 23 पेयर्स ही रहेंगे। यहाँ पे अगर इट इज 2n इन पेरेंटल सेल देन इट बिकम्स n, 1 सेट रह जाता है। 1 सेट को तो हम लोग कभी नहीं छेड़ते हैं, एक सेट तो पूरा रहना है, बच्चे को पूरी 5 किताबें पढ़नी है। उसी तरह से उस सेल को पूरे उस स्पेसीज की जितना नंबर 1 सेट है, इफ इट इज 23 तो मिनिमम कोई भी सेल वो बना ले उसमें रहने ही रहने हैं, ताकि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन रहे। चलो देखें क्या है बच्चा ये। तो मियोसिस, तो पहला स्टार्टिंग सेल हम ले लें। हमारी जो पूरी बॉडी है पूरी जाइगोट से बनी है, माइटोसिस से बनी है, इक्वेशनल डिवीजन से बनी है। तो आपके बॉडी का कोई भी पार्ट हो, उसका कोई भी सेल हो, अगर आपसे पूछा जाए उसकी प्लॉइडी क्या है, आप आंख बंद करके बता दीजिए कि इट इज 2n। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है एक्सेप्ट फॉर द गमीट। जो एग बनेगा और जो स्पर्म बनेगा, इसके अलावा सारे के सारे होते हैं 2n। अच्छा ये बात भी बताइए कि गमीट्स में हाफ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ये भी आपको समझना है कि गमीट्स में पूरे 2n क्यों नहीं है। दैट इज अ सिंपल थिंग। क्यों? क्योंकि उस स्पेसीज का नंबर है, क्रोमोसोम एक सेट की उसे रिक्वायरमेंट है 23 क्रोमोसोम की ह्यूमन बीइंग को। As it has done sexual reproduction, so the child received 1 set from father, 1 set from mother. जैसे हम किसी भी क्रोमोसोम को कम नहीं कर सकते हैं, कम करने से उसकी वो इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट नहीं बनने वाला है, एक्स्ट्रा हाइट नहीं होने वाली है इसको। दैट विल कॉज डिफॉर्मिटी, दैट विल कॉज डिजीजेस, इवन इट विल कॉज डेथ। तो वो नंबर का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है बच्चा, वो नंबर का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए पेरेंट्स क्या करते हैं, when they commit their cell, their body commits कि okay now I start from my puberty, I start the process of reproduction, now I can do reproduction। तो वो क्या करता है, अपने बॉडी में गमीट्स बनाना शुरू करता है। उसके कुछ डिप्लॉयड सेल्स है जो अब हैप्लॉइड सेल्स बनाने लगते हैं। तो दिस गमीट्स आर हैप्लॉइड, तो वो जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, फिर से डिप्लॉइड जो उसके पेरेंट्स के बॉडी में डिप्लॉइड था उसके भी बॉडी में डिप्लॉइड आ जानी है। और हर जनरेशन में जितनी बार भी रिप्रोडक्शन कर ले तो नंबर मेंटेन रहेगा। वो नंबर मेंटेन इसीलिए रहेगा क्योंकि गमीट ने क्या कर लिया था, गमीट ने अपने पेरेंट के बॉडी में जितने हैं उससे नंबर हाफ कर लिया था, ताकि दूसरे पेरेंट के गमीट से मिलने के बाद उसका वो सेम नंबर रिस्टोर हो जाए। ठीक है, तो दिस वाज द नेसेसिटी ऑफ गमीट फॉर्मेशन। लेकिन हमें ये पढ़ना है कि मियोसिस में ऐसा होता है तो कैसे होता है। बात तो वही है, सेल तो वही 2n है। सो सपोज दिस इज द 2n सेल, ये एक डिप्लॉयड सेल है। तो ये जब एक डिप्लॉयड सेल है, वही सेम हम लोग उसका 2 पेयर्स वाला ले लेते हैं कि ये उसका क्रोमोसोम नंबर 1 है पैटर्नल, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। तो ये जानते हो कैरियोटाइपिंग में हम जो क्रोमोसोम 1 2 करते हुए 23 तक बोलते हैं, दिस इज वी हैव अरेंज द क्रोमोसोम्स एज पर देयर लेंथ जो है, साइज जो है, उसके अकॉर्डिंगली हम अरेंज करते हैं। तो जो क्रोमोसोम नंबर जो क्रोमोसोम सबसे लंबा है उसे हम शुरू में रखते हैं, उसका नाम देते हैं 1, उससे थोड़ा छोटा तो 2, देन 3, इस तरह से हम अरेंज करते हैं। तो जब हम क्रोमोसोम 1 अरेंज करते हैं तो एक थोड़ा ही होता है, एक तो पैटर्नल होता है और दूसरा जो है वो मैटरनल होता है। तो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब यहाँ पर भी दिस वाज क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2, सो दिस इज ऑल्सो इन पेयर ना। तो यहाँ पर भी ये पेयर है और देखो मैंने इसे 1 से छोटा बनाया है। तो दिस इज P एंड दिस इज मैटरनल क्रोमोसोम। ये एक सेल है, ये एक सेल है। अब इसे बनाने हैं गमीट्स। जब ये सोचता है कि अच्छा अब मुझे गमीट्स बनाने हैं, हियर ऑल्सो इट अंडरगोज दिस एस फेज। ये 2 बार डिवाइड करता है। माइटोसिस में 1 बार डिवाइड करके 2 सेल बनाता है, यहाँ 2 बार डिवाइड करते हुए एक सेल से 1 पेरेंट सेल, इट फॉर्म्स 4 डॉटर सेल्स। इससे बनेंगे 4
डॉटर सेल्स। अच्छा, अब ये 4 डॉटर सेल में हाफ कैसे होंगे? कभी आप ऐसे ही हाथ में पेन लेते हुए ये 4 ऐसे रखते हुए करके देख सकते हो कि कितने अलग अलग तरह के मेथड्स हो सकते थे नेचर में, जिससे वो अपने डॉटर सेल में, उसे देने तो सारे हैं, क्रोमोसोम 1 भी देना है, क्रोमोसोम 2 भी देना है, लेकिन एक सिंगल सेट देना है। ये कैसे पॉसिबल है? नेचर ने क्या किया है ये हम आपको बता दें। इट अंडरवेंट एस फेज। एस फेज में जैसे वो गया तो ऑटोमेटिकली ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे भी उसने डबल स्ट्रैंड बना लिया और क्रोमोसोम नंबर 2 पर भी उसने अपना डबल वाला स्ट्रैंड बना लिया, जैसे उसने माइटोसिस में किया था, यहाँ पर भी उसने कर लिया। ये हो गए 2 सेल। Now again we are not going for the different steps of meiosis, prophase, metaphase, anaphase, telophase, prophase का leptotin, zygotin, pachytin, diplotin, dikinesis, no। अब हम देखते हैं कि ये जो है ये कैसे बना रहा है रेडक्शनल। व्हाई इट इज रेडक्शनल डिवीजन? जो मियोसिस 1 है, आई टोल्ड यू कि इट डिवाइड्स ट्वाइस। एक सेल एक बार डिवाइड किया, 2 सेल बन गए, 2 से फिर 4 बन गए। पहले वाले डिवीजन को कहते हैं मियोसिस 1 और यही है रेडक्शनल डिवीजन। और इस रेडक्शनल डिवीजन में डॉटर सेल के पास एक ही सेट रह जाता है। एक सेट का मतलब क्या होता है बच्चों? कि क्रोमोसोम नंबर 1, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 कितने हैं? 2 है। क्रोमोसोम नंबर 2 कितने हैं? 2 है। इसके जो 2 डॉटर सेल है, इस 2 डॉटर सेल में क्या होने वाले हैं? यहाँ पे ये क्रोमोसोम नंबर 1 आ गया, ये क्रोमोसोम नंबर 1 आ गया, यहाँ पे ये क्रोमोसोम नंबर 1 जो दूसरा वाला है इधर चला गया। ये क्रोमोसोम नंबर 2 जो है एक यहाँ आ गया, क्रोमोसोम नंबर 2 कोई भी डाल सकते हो आप, दोनों पैटर्नल एक तरफ, दोनों मैटरनल एक तरफ भी डाल सकते हो, मिक्स मैच कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया, दिस वन इज क्रोमोसोम नंबर 2। व्हाट आई वांट यू टू सी हियर इज दैट यहाँ स्ट्रैंड सेपरेट नहीं हुए हैं। दिस मियोसिस 2 में जो एक ही सेंटेंस आपको याद रखनी है बच्चों, जिससे आपका मियोसिस पूरा क्लियर होने वाला है, वो ये है कि मियोसिस 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। मैं ये एकदम बोल्ड लेटर में लिख देती हूँ। इन मियोसिस 1 द homologous pair of chromosomes, homologous pairs separate from each other, separate and move to 2 different cells। वो सेपरेट हो गया और अलग अलग सेल्स में चला गया। दिस इज नाउ N, दिस इज ऑल्सो N। यहाँ देखो क्रोमोसोम नंबर 4 थे, यहाँ देखो क्रोमोसोम नंबर 2 ही है, लेकिन उसके पास क्रोमोसोम नंबर 1 भी है, क्रोमोसोम नंबर 2 भी है। दिस ऑल्सो इज हैविंग क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2। उसमें उसे कोई दिक्कत नहीं आई, उसे जितना उसका सेट था वो पूरा रह गया, पूरा सेट रह गया। दैट मीन्स आपको सिर्फ ये वाली सेंटेंस याद रखनी है मियोसिस समझने के लिए कि इन मियोसिस 1 द होमोलॉगस पेयर्स दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर and each chromosome of the pair moves to 2 different daughter cells। इसके बाद जो बच्चा मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 तो माइटोसिस ही है। मतलब अब इस सेल से 2 सेल बनेंगे, इससे 2 बनेंगे, जिसमें सिर्फ ये जो डबल स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जानी है, दोनों सेपरेट हो जानी है और 2 डॉटर सेल में जानी है। जैसे सपोज इससे हम बनाते हैं तो इसके पास ब्लैक वाला हमने डबल स्ट्रैंड जो बनाए हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड का एक सेल में आएगा और एक रेड वाला आएगा। ये हो गया उसका एक सेल, और एक दूसरा सेल जो बनना है उसमें भी ये और ये, इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए और ये 2 सेल बन गए। सिमिलर विल बी द केस विथ दिस वन ऑल्सो। इसमें भी क्या हुआ, अब ये एक सेपरेट हो गया, यहाँ आ गया, और इसका दूसरा जो सेपरेटेड है यहाँ आ गया।
इसका भी दूसरे क्रोमोसोम का सिंगल स्ट्रैंड यहाँ और सिंगल स्ट्रैंड यहाँ. दिस डबल स्ट्रैंड्स दे सेपरेटेड and they move to these 4 daughter cells. Each daughter cell is haploid. ये मैजिक है नेचर का. माइटोसिस को भी आप वैसे आराम से याद रख सकते हो और मियोसिस को भी इस तरह से आराम से समझ सकते हो, और उसे फिर हम कैसे हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझते हुए उसे हमने माइटोसिस मियोसिस पे अप्लाई करके यहाँ देख लिया. नाउ वी विल अप्लाई इट टू the haplodiploidic life cycle of bryophytes and pteridophytes. और देखते हैं कि ये डर जो है सेल साइकिल का, प्लांट लाइफ साइकिल का, वो ख़त्म होता है या नहीं होता है. चले आगे बढ़े ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के. बट आई होप दैट दिस वन इज क्लियर टू यू. दिस वन इज क्लियर टू यू कि जब 2n है, यहाँ भी वही सेम चीज़ आपको याद रखनी है माइटोसिस वाली, कि कोई भी सेल बिफोर इट कमिट्स इटसेल्फ टू डिवीजन द क्रोमोसोम्स आर सिंगल स्टैंडर्ड. वो माइटोसिस में भी अप्लाई होगा, वो मियोसिस में भी अप्लाई होगा. ठीक है. इसे जब तक आप, अभी आपको समझने में अगर आसान लग भी रहा हो, जब तक आप पेन हाथ में नहीं लोगे और इस तरह से अलग अलग करते हुए नहीं देखोगे, एक बार देख लोगे तो लगेगा कि ये बहुत आसान था, बहुत आसान था. उसके बाद जैसे बहुत सारे टॉपिक्स में, बहुत सारे चैप्टर्स में ऐसा, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी है ना, अब ये सेल डिवाइड करने वाला है. क्या ये माइटोसिस से करेगा कि मियोसिस से करेगा? स्पेशली प्लांट किंगडम में कंफ्यूजन हो जाती है. अब ये माइटोसिस से करेगा कि मियोसिस से करेगा? तो आप बता सकते हो कि अगर एक हैप्लॉइड प्लांट, देखो ये भी चीज़ समझ लो बच्चे कि दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी जो बॉडी है वो डिप्लॉयड ही होनी है, क्योंकि एक पेरेंट से एक सेट मिल रहा है, दूसरे पेरेंट से दूसरा सेट मिल रहा है. ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आर ऑल्सो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. उसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स में हैप्लॉइड होती है, टेरिडोफाइट्स में डिप्लॉयड होती है. लेकिन जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स का, वो भी गमीट्स बनाता है. तो आपको अगर पूछा जाए माइटोसिस से कि मियोसिस से, तो आप कंफ्यूज होके बैठे नहीं रहोगे. आप बताओगे कि हैप्लॉइड को छेड़ नहीं सकते हैं. हैप्लॉइड का सेट मिनिमम सेट है, पूरा पी सी बी ई और ऑप्शनल वाले 5 बुक्स है, वहाँ से उसे हटा नहीं सकते हैं. तो उसका मियोसिस हो नहीं सकता है, उसे कम नहीं कर सकते हैं. सो इट हैज़ टू बी माइटोसिस. तो इस तरह से आप लॉजिकली इसे सोच के सही वाला आंसर पकड़ सकते हो, विच विल हेल्प यू ऑफ कोर्स इन योर बोर्ड ऑल्सो, नीट ऑल्सो. चलो अब देखें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट. नाउ द ब्रायोफाइट्स. अभी कुछ ही देर में हम प्लांट किंगडम शुरू करने वाले हैं. वी आर एट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. वन मोर लेक्चर और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा बच्चों. I am following the same sequence as it is there in NCERT because I want those students जो कोचिंग में नहीं जा रहे, सिर्फ स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में वही सेम सीक्वेंस फॉलो होता है NCERT का. तो कहीं पे बच्चे को कोई क्लैश नहीं आए कि स्कूल में अलग चल रहा है और यहाँ हम कुछ अलग पढ़ रहे हैं. तो वो जो सेम पढ़ते जाता है तो उसे कोई भी क्लैश नहीं होती, जिससे उसे 11 से ही इंटरनल एग्ज़ाम में भी वो स्टेप बाय स्टेप शांति से आगे बढ़ सकता है. सो हियर ब्रायोफाइट्स. अभी हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद तो फिर हम लोग प्लांट किंगडम में ही जाने वाले हैं ना. तो प्लांट्स दे आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, जिसमें से एक ग्रुप है ये ब्रायोफाइट्स. दिस ब्रायोफाइट्स दे आर हैप्लॉइड. मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड and this is called a gametophyte. इस प्लांट बॉडी को कहते हैं gametophyte. ये ब्रायोफाइट गमीट्स बनाता है. ये मेन प्लांट बॉडी गमीट बनाता है, मेल गमीट और फीमेल गमीट. इसने बनाए मेल गमीट और इसने बनाए फीमेल गमीट. ठीक है. ये है एन को नहीं छेड़ सकते हैं, इसका मतलब मियोसिस नहीं कर सकते हैं. ऑटोमेटिकली आ जाइए इस कंक्लूजन पे. तो ये हो गया आपका माइटोसिस. इसने माइटोसिस से बनाए
ताकि इसके जो डॉटर सेल्स है उसमें भी सेम नंबर ऑफ दिस क्रोमोसोम्स आर देयर, दैट इज वन सेट, दैट इज हैप्लॉइड। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो बन गया जाइगोट। दिस जाइगोट 1n, तो इसमें 2n हो गए। अब ये जब जाइगोट 2n हो गया एंड दिस बॉडी, मेन बॉडी इज n, ये देखो यहाँ n है, ये 2n है। अब हमारी बॉडी उल्टी है ना, मतलब वी आर हैविंग डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और हमारे जो सेक्स सेल्स है वो है हैप्लॉइड। लेकिन हमारे सेक्स सेल्स ऐसा तो नहीं करते कि चलो हम लोग जो हैप्लॉइड है, चलो हम लोग एक कुछ बॉडी बना लेते हैं, मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट बॉडी, लेकिन चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसे करते हुए स्पर्म एक बॉडी बना ले, एग एक दूसरा तरह का बॉडी बना ले, ऐसा तो नहीं करते। They search for each other, they fuse with each other, they become diploid और वो सेम टू सेम जैसे पेरेंट बॉडी थी उसी तरह की बॉडी बनाती है। What happens here as well as in case of pteridophytes is that इसकी ये एक हैप्लॉइड बॉडी थी। अब ये जो जाइगोट है इसने क्या किया, इसने एक डिप्लॉइड बॉडी बना दी, इसने एक डिप्लॉइड बॉडी बना दी which is very much different from this parent body and it is called sporophyte। ये था gametophyte, इसे कहते हैं sporophyte। sporophyte बन गया, ठीक है। अब ये sporophyte 2n है। अब इसे लगता है अरे मैं तो 2n हूँ, मैं तो इसके जैसा बना ही नहीं, मैं कुछ अलग ही बन गया कुछ, तो मुझे ऐसे बनना है। फर्स्ट स्टेप, पहले n बन जाओ, सेट को कम कर दो, तो अब क्या होना है, अब तो मियोसिस ही होना है बच्चों। तो ये मियोसिस करता है, मियोसिस करते हुए ये क्या बनाता है, ये बनाता है स्पोर्स। ये जो स्पोर्स बनाता है दे आर हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड हो गए। और ये डिप्लॉइड था इसीलिए इसने मियोसिस किया, इसीलिए स्पोर्स बन गए हैप्लॉइड। डिप्लॉइड था, उसे हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने हैं ताकि वो पेरेंट के बॉडी की तरह हैप्लॉइड हो जाए। सो द ऑटोमेटिक सिलेक्शन इज मियोसिस। This is how by meiosis it forms spores and again this adult main plant body जैसा बॉडी उसका बन जाता है। ये है ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल। दिस इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्योंकि इसमें एक हैप्लॉइड बॉडी भी इसकी लाइफ साइकिल में आती है जो मेन बॉडी है, और डिप्लॉन्टिक एक दूसरी भी प्लांट बॉडी आ जाती है जो डिप्लॉइड है, ठीक है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड के समझने से कैसे ऐसे भी कंसेप्ट्स आराम से क्लियर हो जाते हैं। नाउ लेट अस कम टू टेरिडोफाइट, जिसका टोटली उल्टा है ब्रायोफाइट से। ब्रायोफाइट मेन बॉडी इज हैप्लॉइड, टेरिडोफाइट मेन बॉडी इज डिप्लॉइड। लेट अस सी दैट टू। नाउ सी दिस टेरिडोफाइट स्टूडेंट्स, टेरिडोफाइट्स। ये ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स के लाइफ साइकिल का टेंशन खत्म हो जाएगा तो प्लांट किंगडम आपके लिए बहुत आसान हो जानी है। दिस टेरिडोफाइट्स दे आर डिप्लॉयड, द मेन बॉडी इज डिप्लॉयड। ये डिप्लॉयड है और इसे कहते हैं स्पोरोफाइट, इसे कहते हैं स्पोरोफाइट। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता, ये स्पोर्स बनाता है। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता, ये मियोसिस से स्पोर्स बनाता है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। सो इट इज हैविंग हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये स्पोर्स को क्या आता है दिमाग में, अब ये स्पोर्स क्या करता है, दे जर्मिनेट एंड फॉर्म अ बॉडी, a gametophyte which is totally different from the main plant body. So ये germinate करते हुए it forms a gametophyte। उस gametophyte का नाम भी है, यहाँ ये ज़रूरी नहीं था लेकिन उससे ज़्यादा बर्डन आएगा नहीं तो बता देते हैं। नाम एक आपको सुनने में पहले ही आ जाएगा। So this is gametophyte called prothallus which is haploid, एक बॉडी बना दी इसने जो पेरेंट बॉडी से डिफरेंट है। अब इसने देखा कि अरे मैं तो डिफरेंट हूँ, मुझे तो ऐसे बनना है।
नाउ इट फॉर्म्स गमीट्स। अब ये गमीट्स बनाएगा, जो गमीट फ्यूज होते हुए जाइगोट बनाते हुए फिर इसे बना देंगे। कहाँ पे माइटोसिस होनी है, कहाँ पे मियोसिस होनी है, चलिए अब आप खुद बताते जाइए। तो बच्चों, ये गमीटोफाइट है, दिस गमीटोफाइट इज हैप्लॉइड। इसे बनाने हैं गमीट्स, एक हो गया दिस मेल गमीट एंड एक दूसरा हो गया दिस इज द फीमेल गमीट। हैप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड बनाना है। सो व्हाट इज द चॉइस ऑफ सेल डिवीजन? ये होगा माइटोसिस, बिकॉज माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस यहाँ पे नहीं चलने वाला है। ये दोनों जुड़ गए, आपस में जुड़ गए, देन यू गॉट द डिप्लॉयड सेल दैट इज जाइगोट। ये जाइगोट मिल गया। अब ये जाइगोट डिवाइड करते हुए बहुत सारे सेल बनाते हुए ये डिप्लॉयड बॉडी बना देता है। अब फिर से सोचोगे क्या, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, सेम टू सेम क्रोमोसोम नंबर अगर है तो इसने इक्वेशनल डिवीजन ही तो यूज किया होगा। सो हियर इट हैज टू बी माइटोसिस ओनली। बन गया, टेरिडोफाइट का भी बन गया। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में बच्चे और दो तरह के स्पोर्स के नाम से भी डरते हैं। यह कंसेप्ट में उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब तुरंत टेरिडोफाइट आता है तो वो मैक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर से चूंकि आप डर जाते हो, तो इसे यहाँ पे थोड़ा आपको आइडिया दे दे। ये याद रखिए कि आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में उसकी ज़रूरत नहीं थी। ये जो सैप्रोफाइट मियोसिस से स्पोर्स बनाता है, ये सारे स्पोर्स हो सकता है कि एक जैसे हो। अगर ये एक जैसे है तो उसे होमोस्पोरस कहते हैं, दिस इज कॉल्ड होमोस्पोरस। अगर दो तरह के बनाता है तो उसे कहते हैं हेटेरोस्पोरस। हेटेरो दो तरह के हो गए, ये तो एक ही तरह का है, कोई झंझट ही नहीं है। जो हेटेरो दो तरह का है उसमें एक बड़ा साइज का मैक्रो, एक छोटे साइज का माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या नेक्स्ट बताने वाले हैं। अगर सारे स्पोर्स एक जैसे हैं, उस प्लांट के बनाए हुए सारे होमोस्पोरस है, तो उसमें से जितनी भी बॉडी बनेगी, जो गमीटोफाइट बनेगा, वो एकदम एक जैसे होंगे सारे। तो एक सेम प्लांट में ही मेल और फीमेल गमीट्स दोनों बनेंगे। होमोस्पोरस, सारे स्पोर एक जैसे, फर्क ही नहीं है। तो उससे जो बॉडी बनी उसमें भी फर्क नहीं है, ऑल होमोथैलस। तो फिर उसमें एक ही प्लांट में दोनों तरह के मेल फीमेल गमीट बनेंगे। वेयर एज इफ द टू स्पोर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, हेटेरोस्पोरस, एक मैक्रो बड़ा वाला, एक छोटा, तो जो मैक्रो वाला है इससे जो बॉडी बनेगी वो फीमेल बॉडी होगी, और माइक्रो से जो बनेगी वो मेल गमीटोफाइट। This one will produce female gametes and this one will produce male gamete. This is all. This everything was based on the haploid and diploid concept. उसे जब आप समझ लेते हो, actually जब वो पहला ही सेंटेंस है ना, haploid means a single set of chromosome, उसे वैसे के वैसा ही आपने याद कर लिए तो वहीं आप फंस गए। सिंगल सेट मतलब क्या, इसे आपने समझ लिया, माइटोसिस मियोसिस पे इसे अप्लाई करके आपने देख लिया, और फिर आपने ये दोनों की लाइफ साइकिल समझ ली। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। दिस विल बी हेल्पफुल टू बच्चा, नॉट जस्ट यू बट योर क्लास, योर सीनियर्स ऑल्सो, क्लास 12th 2023 aspirants also. So if you find this video useful, then do share it with your seniors too. See you tomorrow 2 p.m. with the topic, the last topic of biological classification, that is virus, viroids, prions and the lichens.